Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 23 में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज जाते जाते मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल बताना चाहूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इक्वालिटी पे बेस्ड है और कुछ इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए, एक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल को आप लोगे, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, या फिर कोई स्केलन ट्रायंगल हो, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स को प्लस करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है, 80 प्लस 60 प्लस 40 करोगे तो कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। इसको एक्चुअली जब आगे चल के आप सीखोगे तो ये कहते हैं उसको कि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। पर फिलहाल आप एक बात याद रखना कि कोई भी इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। So irrespective of the type, it may be isosceles, it may be equilateral, it may be obtuse angle triangle, it may be right angle triangle. Next property है, exterior angle of a triangle is always equal to sum of interior opposite angle. यानी ट्रायंगल का बाहर का एंगल हमेशा अंदर के दो एंगल के प्लस के बराबर होता है। यानी आप देखिए यहाँ पर ACD बाहर का एंगल है और दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 70, यानी उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। या फिर मैं अगर सीधी भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये 130 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा हमेशा। हमेशा, आई एम सेइंग हमेशा। हमेशा का मतलब कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो।
तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो इट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है जहां पर इक्वल ना हो। उदाहरण के तौर पे सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमेशा किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को आप प्लस कीजिए, वो तीसरे से बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे मैं ये दो को प्लस करता हूँ, 7 + 8 मैं करूँगा तो वो हमेशा 10 से बड़ा है, यानी 15 इज ग्रेटर देन 10। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, इन दो साइड्स को प्लस किया तो इसके बराबर है। सर मैं इन दो साइड्स को प्लस करूं तो 10 + 8 इज ग्रेटर देन, तीसरा कौन सा बचा है, 7। तो 10 + 8 कितना होगा बच्चों, 18 इज ग्रेटर देन 7। अब कौन सा बच गया साइड, अब बचा तीसरा वाला कौन सा बचा है, ये दो साइड बचा है, इसको प्लस करेंगे। 10 + 7 अगर मैं करूं तो 10 + 7 हमेशा 8 से बड़ा है, यानी 17 इज ग्रेटर देन 8। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड को प्लस करोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी आप ले लीजिए तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। इट अप्लाइज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट अप्लाइज फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट अप्लाइज फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इट अप्लाइज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, इट अप्लाइज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल के लिए ये रूल बंधन कारक है, उसके बगैर नहीं होगा। नेक्स्ट एक रूल आता है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेट एंड वाइस वर्सा। एक काम करना बच्चों, आप ट्रायंगल बना लो, ओके एक ट्रायंगल बना लो, उसके तीनों एंगल नाप लो और बाद में तीनों एंगल के सामने वाले साइड को आप नापो। एक ट्रायंगल आप बना लो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल आप बना लो, ओके उसके तीनों एंगल को आप नाप लो, तीनों एंगल को आप नाप लो, तीनों साइड को आप नाप लो और बाद में आप ये पाओगे कि जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड बड़ा होता है। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेट, यानी बड़ा साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, छोटा साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। यानी यहाँ पर आप देखिए 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा है, 5 सेंटीमीटर छोटा है तो उसके सामने वाला एंगल छोटा है। उसका उल्टा भी सही है। उल्टा इन द सेंस क्या बता रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया PQR, इसके अंदर मान लीजिए इसको मैंने लिया 70 डिग्री, इसको मैंने लिया 100 डिग्री और इसको मैंने लिया से 10 डिग्री, इसको मैंने लिया 10 डिग्री। तो आप देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेट, यानी अगर बड़ा वाला एंगल है तो उसके सामने वाला साइड हमेशा बड़ा होगा, छोटा वाला एंगल है तो उसके सामने वाला साइड हमेशा छोटा होगा। तो ये स्मॉल है क्योंकि ये भी स्मॉल है, ये बिग है इसीलिए इसके सामने वाला ये भी क्या है, बिग है। तो वाइस वर्सा का ये मतलब होता है। तो आप एक ट्रायंगल लेकर ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल। आप एक ट्रायंगल को कट करो, एक पेपर ले लो बच्चों, काट लो, तीनों एंगल मेजर करो, प्लस करके देख लो 180 आएगा। बाद में क्या करो, एक्सटीरियर एंगल बनाओ, उन दोनों को जोड़ के देख लो, इसके बराबर ये दोनों होगा। उसके बाद क्या करो, और एक ट्रायंगल कट करो, बाद में क्या करो, उसका एक साइड, दो साइड और तीन साइड नाप लो, उसको प्लस करके आप देख लो, तो आप पाओगे कि दो साइड को प्लस करने से तीसरे से बड़ा होता है। इसको प्लस करोगे, इट विल बी ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट, टेक अ ट्रायंगल, मेक अ पीस ऑफ इट, और देखिए आप कि बड़ा साइड यहाँ पर बिग साइड है, तो अगर ये साइड बिग है तो एंगल भी बिग होगा, और अगर साइड स्मॉल है तो उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉल होगा। यानी ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल, स्मॉलर साइड हैज़ स्मॉलर एंगल, और स्मॉलर एंगल हैज़ स्मॉलर साइड
एंड ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड। इसीलिए तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसी के साथ ट्रायंगल्स के सारे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गए बच्चों। कल एक नया टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।